Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Graphics. We will see unit number 5 and today's content is topic 5.4, that is coach curve. Before this, we have studied what is arc, how to generate the arc, what is interpolation technique, types of curves, and how to generate a Bezier curve. So today we are going to see coach curve and its properties. The learning outcomes of this video is, after watching this video, you will be able to how to draw coach curve and you will know the properties of coach curve. The course outcome is develop programs to create curves using algorithms, and program outcomes that will get achieved are PO1, that is improvement in your basic knowledge, PO2 improvement in computer engineering knowledge, PO7 ethics will get satisfied, PO8 individual and teamwork will get satisfied, PO9 oral and written communication will get improved, and PO10 you will participate in the changes of the subject computer graphics lifelong learning. Then the prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of what is interpolation technique and how to draw arc using DDA algorithm. So now let us see how to draw coach curve. The coach curve can be drawn by dividing line segment into 4 segments, equal segments with scaling factor 1/3 and middle 2 segments are so adjusted that they form adjacent sides of an equilateral triangle as shown in figure. So कोच कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल लाइन चाहिए. देन वी विल डिवाइड दैट लाइन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हम उस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड बीच के 2 लाइन सेगमेंट हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि दैट विल बी सीन लाइक एडजेसेंट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. बीच के 2 साइड्स है, बीच के 2 लाइन सेगमेंट है, हमको एक दूसरे को एडजेसेंट बनाने हैं जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स होते हैं, सेम वैसे ही. इसका मतलब सेकंड और थर्ड इन दोनों लाइन सेगमेंट को हमको 60 डिग्री से ऊपर लेके जाना है. सो आफ्टर ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट्स लाइक एडजेसेंट साइड्स, हमारा लाइन सेगमेंट इस तरह से दिखने वाला है. सो ये हमने 60 डिग्री से इसको अपलिफ्ट किया है. सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द कोच कर्व. सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड बीच वाले 2 लाइन सेगमेंट हैं उनको 60 डिग्री से अपलिफ्ट करेंगे और उनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि वो एक दूसरे को एडजेसेंट होने चाहिए, जस्ट लाइक अ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया. नाउ टू अप्लाई द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द कोच कर्व, we have to repeat the above process for each of the 4 segment. अभी हमको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है फॉर ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट. नाउ हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट है, सो फॉर ईच लाइन सेगमेंट हमको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है. वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन 4 इक्वल पार्ट. वी हैव टू अपलिफ्ट 2 मिडल लाइन सेगमेंट्स जस्ट लाइक एडजेसेंट साइड्स. In this way we have to repeat the same procedure. तो ये हो गया हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन. सो आफ्टर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमारा कोच कर्व इस तरह से दिखने वाला है. सो द रिजल्टेंट कर्व हैज मोर विजुअल्स and its length is 16/9 times the original length. अभी
जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी उससे 16/9 टाइम्स हमारी कर्व की लेंथ इंक्रीज हो गई है और हमारे पास मोर नंबर ऑफ विजुअल्स है देन प्रीवियस वन. So after this again we will apply same procedure for each line segment. So in third approximation हमारा कर्व इस तरह से दिखने वाला है and in fourth approximation हमारा कर्व इस तरह से दिखने वाला है. So again we will repeat the same procedure if you have more number of visuals. So this is how Koch curve is drawn. Now let us see what are the properties of Koch curves. So first property is each repetition increases the length of the curve by factor 4/3. हाँ, each repetition means अगर हम बार बार वही स्टेप रिपीट करते जाते हैं तब हमारे कर्व का जो फैक्टर है वो 4/3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. लेंथ ऑफ कर्व इज इनफाइनाइट, क्योंकि जितना भी चाहे उतने टाइम हम ये कर्व की प्रोसीजर जो है कर्व जनरेशन की रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ विजुअल्स मिल सकते हैं. दैट इज व्हाई लेंथ ऑफ द कर्व इज इनफाइनाइट. इट डजंट फिल एन एरिया. हम सिर्फ यहाँ पे कर्व को जनरेट कर रहे हैं, विजुअल्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट हम कर्व के एरिया को फिल नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए द प्रॉपर्टी इज it doesn't fill an area. It doesn't deviate much from its original shape. हमारा जो ओरिजिनल शेप है वो उसकी प्रॉपर्टी ये रिटेन करता है, मीन्स हम ज्यादा डेविएट नहीं कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल शेप से. सो ओरिजिनल शेप ही रह रहा है हमारा, बट उसका साइज या फिर उसका लेंथ जो है वो बस इंक्रीज हो रहा है. इसलिए it doesn't deviate much from its original shape. If you reduce the scale of the curve by 3, we find the curve that looks just like the original one. अगर हम 3 times इसका स्केल रिड्यूस करते हैं, 3 times हम बैकट्रैक करते हैं, तो हमको ओरिजिनल कर्व मिलने की पॉसिबिलिटी है. बट वी मस्ट असेंबल 4 such curves to make the original. लेकिन हमने 3 times स्केल किया है ऑब्जेक्ट को, तो हम ओरिजिनल कर्व हमको मिल सकता है, बट हमको 4 times ऐसे ही 4 कर्व्स हमको असेंबल करने पड़ेंगे, 4 कर्व्स हमको ऐसे ही ज्वाइन करने पड़ेंगे, तभी हम ओरिजिनल कर्व पा सकते हैं. सो वी हैव 4 equals to 3D means 3 times scaling, 3 times backtrack and 4 times या 4 curves we should assemble to make the original curve. Then this is the animation for Koch curve. तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये सिंपल ट्रायंगल है, देन इस तरीके से एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडजेसेंट साइड्स बनाए हैं और फाइनली बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस मिलने के बाद हमारा कोच कर्व इस तरह से दिखने वाला है. इसको कोच कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि द कोच कर्व फ्रैक्टल्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1904 बाय द साइंटिस्ट हेज वोन कोच. ये 1904 में हेज वोन कोच ने इंट्रोड्यूस किया था ये कर्व और उसकी टेक्निक. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन कोच कर्व. So let us summarize today's lecture. Today we have studied what is Koch curve, how to draw Koch curve, and what are the properties of Koch curve. So dear students, if you have any queries, then watch videos frequently till you get understand it. And if you are stuck somewhere, then feel free to call me anytime or reach out on the mentioned email ID. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.